Now today we will start with order 14 and we will also finish order 15 today, and we will try and finish order 11 and order 13 if possible. Alright. So let us first read order 14, settlement of issues. ये important है, ये prelims का बहुत important question है और मेंस में भी आ जाता है. तो पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रूल 1 क्या रीड करता है. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. इट सेज इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफाउंड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर. यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? मटेरियल प्रोपोजिशन. सो इश्यू अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफाउंड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर. व्हेन यू रीड इट अलोंग विद ऑर्डर 10 रूल 1, तो आप ऑर्डर 10 रूल 1 में कल ध्यान दे रहे थे कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कोर्ट हर पार्टी से सर्टेन करता है व्हाट ही एडमिट्स एंड व्हाट ही डिनाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिगेशंस ऑफ फैक्ट, एंड देन कोर्ट रिकॉर्ड सच एडमिशंस एंड डिनायल्स. क्यों ऐसा करता था? Because court wanted to narrow down the issue and see the what is the real controversy between the parties. Now you understand why under order 10 rule 1 the judge was asking about admissions and denials in context of allegations of fact. This is precisely the reason, because the court wants to narrow the area of controversy and just find out that what is the real issue between the party. Then coming back to order 14 rule 1, subrule reads, the next subrule reads, material proposition are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defense. मतलब हर वो proposition of law and fact are deemed as material propositions which the plaintiff must allege in order to show that he has a right to sue. ठीक है, कि उसके पास अधिकार है सू करने के लिए डिफेंडेंट को. और डिफेंडेंट के लिए मटेरियल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? विच ही मस्ट एलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस. प्रोपोजिशन का लिटरल मतलब होता है अ स्टेटमेंट और असर्शन विच एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन. तो लॉ के कंटेक्स्ट में जो मटेरियल प्रोपोजिशंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज, वो propositions of law and fact हैं which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or defendant must allege in order to constitute his defense. तो यहाँ पे keywords क्या हुए? right to sue and constitute his defense. आप automatically समझ सकते हैं कि कौन से words किसके context में. right to sue obviously plaintiff के context में है and constitution of defense किसके context में? defendant के context में. सब रूल 3 पे आते हैं. each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distinct issue. हर material proposition जो एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है, उसका एक डिस्टिंक्ट इशू बनता है, उसका एक डिस्टिंक्ट इशू बनेगा. तो किसी एक केस में न्यूमरस इश्यूज अराइज कर सकते हैं जहां पे प्लेंटिफ एक चीज असर्ट करे और डिफेंडेंट वो चीज डिनाई करे. तो हर उस सिचुएशन पे एक डिस्टिंक्ट इशू बनेगा. मगिंग अप ऑफ इश्यूज आर नॉट अलाउड. आप एक जनरल इशू नहीं बना सकते, आपको बड़े स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट इश्यूज बनाने होते हैं ऑन ईच मटेरियल प्रोपोजिशन. अब इश्यूज आर ऑफ टू काइंड्स. पहला इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ. लेकिन मैंने आपको एक थर्ड काइंड भी बताया है. देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ इशू विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ. ऐसे भी इश्यूज होते हैं. तो एक और चीज आप ऐड कर लीजिएगा that there can be a third kind of an issue, that is mixed issue of fact and law. Lastly we come to sub rule 5 of rule 1. At the first hearing of the suit, court shall, after reading the plaint and the written statement if any, and after examination under rule 2 of order 10, and after hearing the parties or their pleader, ascertain upon what material propositions of fact or law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend. That is why I was telling you that order 10 is directly related to order 14. तो अब आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं. मैं उस टाइम ये सारे इतना इंटरलिंकिंग नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आपको सेक्शन 89 के कंटेक्स्ट में भी कुछ समझाना था. बट नाउ यू कैन इंटरलिंक दैट इट हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 10 रूल 1 and 2. ठीक है.
order 14 का rule 1 has to be read with what? Order 10, rule 1 and 2. Finally, it reads sub rule 6 of rule 1 of order 14. Nothing in this rule requires the court to frame and record issues where the defendant at the first hearing of the suit makes no defense. अगर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करता है या अपने आप को डिफेंड ही नहीं करता है तो जज को इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब आपको मेन चीज़ें याद क्या रखनी है. रूल 1 में मेन चीज़ है आपका सब रूल 5 और ये मटेरियल प्रोपोजिशंस को लेके जितनी भी बातें हो रही हैं. ठीक है. इश्यूज कब अराइज होते हैं? व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ is affirmed by one party and denied by other. Material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show his right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defense. Issues कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो एक्ट ने 2 तरीके के बताए पर 3 तरीके के होते हैं. थर्ड इशू इज मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ एंड द अदर 2 आर इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ. फिर अगर डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड नहीं करता है या रिटन स्टेटमेंट ही नहीं फाइल करता है then nothing under this rule shall compel a court to frame an issue. ठीक है. अगर ये सारी चीज़ें आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर CPC आसान होने लगती है. Now we come to sub rule 2, court to pronounce judgment on all issues. ये बहुत ज़रूरी है. अगर कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिया है और उसको स्ट्राइक आउट नहीं किया है then court has to pronounce judgment on all the issues that it has framed. हर उस इशू पे उसे अपना जजमेंट सुनाना होगा. वो ऐसा नहीं कर सकता कि 5 इश्यूज उसने बनाए और 5 में से सिर्फ 4 का उसने डिसीजन दिया और एक इशू को छोड़ दिया. नहीं. इफ दैट इशू रिमेन्स द कोर्ट हैज टू प्रोनाउंस जजमेंट अपॉन इट. सो रूल 2 रीड्स notwithstanding that a case may be disposed on a preliminary issue, the court shall, subject to provisions of sub-rule 2, pronounce judgment on all issues. Sub-rule 2 reads, कहते हैं ना subject to provision to sub-rule 2, it says where issues of both of law and of fact arise in the same suit and the court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only, it may try the suit first if that issue relates to jurisdiction of the court or bar to the suit created by any law for the time being in force. And for that purpose, if it thinks fit, postpone the settlement of other issues until after that issue has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue. तो कोर्ट आपसे क्या कह रहा है? No, sorry, not court. Legislature आपसे क्या कह रहा है under the sub rule 2? वो आपसे कह रहा है कि notwithstanding कि कोई भी केस आप एक प्रिलिमिनरी पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हैं. वो प्रिलिमिनरी पॉइंट लॉ का ही होगा. तब भी अगर आपने उससे ज़्यादा इश्यूज फ्रेम किए हैं आप सारे इश्यूज पे जजमेंट देंगे. सब रूल 2 कहता है कि अगर इश्यूज ऑफ लॉ अराइज होते हैं किसी केस में विच रिलेट्स टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और बार टू द सूट, तो कोर्ट चाहे तो फॉर दैट पर्पस उन इश्यूज को पहले बनाए और बाकी इश्यूज को पोस्टपोन कर दे टिल दोज 2 इश्यूज आर डिसाइडेड फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए बार टू द सूट कोर्ट ने पा लिया कि द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और द सूट इज हिड बाय रेस जुडिकाटा और द सूट इज हिड बाय ऑर्डर 2 रूल 2, और लेट अस सपोज द पर्टिकुलर कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द सूट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में मैटर चल रहा हो और जो सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो. ठीक है, या हो सकता है द सूट ऑफ सिविल कोर्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो. ये सारी सिचुएशन अराइज कर सकती हैं. तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम लेजिस्लेचर ने कोर्ट्स को बोला है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ऐसा करिएगा कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट का इशू आप पहले डील करिएगा, या अगर बार टू द सूट की सिचुएशन आ रही है तो वो वाले इश्यूज को, ये सब इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं, इनको आप पहले डील करिएगा. और जब तक इन पे डिसीजन ना आ जाए तब तक सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि जज ने फैक्ट्स के इशू पहले डिसाइड कर लिए कि मान लीजिए किसी केस में 6-7 इशू अराइज किए और 3 इश्यूज लॉ के अराइज किए. ठीक है, और उन लॉ के इश्यूज में से जो 2 इश्यूज थे, एक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेट कर रहा था और एक बार टू द सूट से रिलेट कर रहा था. ठीक है, तो अब मान लीजिए
कि जज साहब ने फैक्ट वाले इश्यूज पहले डिसाइड कर लिए, एविडेंस लिया, क्रॉस एग्जामिनेशन देखा, सब कुछ हो गया, ठीक है, और फिर जब वो जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट पे आए तो उन्होंने पाया कि सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन बार्ड है उस केस में, या वो बार टू द सूट वाले पॉइंट पे आए या बार टू द सूट वाले इशू पे आए, देन दे फाउंड आउट कि अरे ये जो सूट है हमारे सामने, इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा या नहीं? दैट इज वाई द लेजिस्लेचर इज टेलिंग कि आप इन इश्यूज को पहले ट्राई करिएगा और जो बाकी के इश्यूज हैं उनको तब तक पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि इट माइट टर्न आउट कि आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस सूट को एंटरटेन करने का, और दैट द सूट इज बार्ड बाय सम लॉ। So what the court should do is that the court should postpone the settlement of other issues until after the issues has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision on those issues. अब उन issues पे अगर court ने पाया कि yes it has jurisdiction, then the court may rightfully proceed to determine that particular issue and then proceed to settle other issues and decide them. All right. But if the court actually finds that it does not have jurisdiction to entertain a particular issue, or it does not have the authority to entertain the suit, or the suit has been barred due to some law, then it would be wise for the judge concerned to actually decide these issues first. That is why the legislature is telling the court that you decide these issues which relates to your jurisdiction or which relates to bar to the suit first, because it may turn out that you do not have jurisdiction or the suit is barred by some law. Then in that scenario, if you first decide the issues of fact after lengthy evidence appreciation and following all the rules of the trial, examination and cross examination is going on, and after all that you come to finally on these issues which relates to jurisdiction of the court and bar to the suit, you may find out that you do not have the jurisdiction to begin with, or you may find out that the suit has been barred by some law. Then what would happen? Then all the entire exercise that you did for the settlement of issues of fact, it would be a wasteful exercise, because if you do not have jurisdiction over a particular matter, then you do not have an authority to decide those issues. तो आपने जितना अपना काम किया, it is totally gone to waste, because if the court does not have jurisdiction to decide a case, then the finding on those issues by such court is futile, meaningless. Similarly, if the suit is barred by law, then there is no point in deciding any issues of fact, because the court cannot entertain that suit in accordance with law at all. जब सूट बार्ड है तो उस पर इश्यूज डिसाइड करने से क्या फ़ायदा? तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पहले इश्यूज ऑफ फैक्ट डिसाइड कर लें और फिर आप लेंदी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस सब कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड कि यू डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन और द सूट इज बार्ड। टाइम वेस्ट होगा। इसी चीज को बचाने के लिए लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस दिस प्रोविजन एंड सेड कि वेयर इश्यूज ऑफ बोथ लॉ एंड फैक्ट अराइज इन द सेम सूट and the court is of the opinion that case or any part thereof may be disposed on an issue of law only, it may try those issues first if those issues relate to jurisdiction of the court or bar to the suit, and for that purpose may, if he thinks fit, postpone the settlement of other issues after those issues has been determined, and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue. अब देखिए यहाँ पे may शब्द का यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब ये डिस्क्रेशनरी है, लेकिन प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाले इशू सबसे पहले डिसाइड होते हैं, इससे कोर्ट का जुडिशियल टाइम बचता है। प्रॉपर प्रैक्टिस में दीज इश्यूज आर डिसाइडेड फर्स्ट, ठीक है, कभी भी ये लास्ट में नहीं डिसाइड होते, पहले ही डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे इश्यूज ऑफ लॉ हैं, जो जुरिस्डिक्शन का जो इशू होता है वो ऐसा इशू ऑफ लॉ है जो अगर डिसाइड हुआ then it has the capacity to dispose of the case on that issue alone, है ना? कैसे? वही बात है, jurisdiction वाले क्लॉज में क्या होगा कि you do not have a jurisdiction on this matter, सब्जेक्ट मैटर आप एंटरटेन नहीं कर सकते, या टेरिटोरियल या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपके पास नहीं है, तो कोर्ट कहेगा हाँ नहीं है। अगर ये पाया कि उसने नहीं है तो टाइम वुड बी वेस्टेड, सो इट इज़ बेटर टू ट्रांसफर द केस टू सम अदर कोर्ट, या
कोर्ट ने पाया that the suit is barred by law of limitation, तो फिर तो सारी फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज वुड बी रेंडर्ड फ्यूटाइल, है ना. तो ये टाइम बचाने के लिए है, टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ पार्टीज एज वेल एंड टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ कोर्ट एज वेल. ठीक है. तो प्रॉपर प्रैक्टिस में यू शुड ऑलवेज डिसाइड इश्यूज ऑफ लॉ विच रिलेट्स टू jurisdiction ऑफ द कोर्ट एंड बार टू द सूट फर्स्ट एंड पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज. ऐसे कभी कभी जजमेंट राइटिंग में सवाल आते हैं ऐसे, और डीजेस में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो उसमें वो चेक करते हैं कि आप पहले क्या करते हैं. तो वो आपको एक बहुत बड़ा सा फैक्चुअल सिनेरियो देंगे. फैक्चुअल सिनेरियो में आपको जज करना है. अब उसमें आपको ध्यान देना है कि कहीं कोई पार्टी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर रही है, कहीं कोई पार्टी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को तो नहीं चैलेंज कर रही है, कहीं कोई पार्टी ये तो नहीं एलेज कर रही है कि द सूट इज बार्ड बाय सम लॉ. वो चाहते हैं कि आप उन इश्यूज को पहले देखें. वो बोलेंगे नहीं आपसे क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स वो तो फिर बहुत बड़ा हिंट हो जाएगा, वो बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन यू शुड डिसाइड दोज इश्यूज फर्स्ट. आपको वो इशू पहले डिसाइड करने चाहिए. ठीक है. क्योंकि पता चला आपने प्रिलिमिनरी लेवल पे पाया कि यू डू नॉट हैव द jurisdiction to decide that matter or that the suit is barred by some law. तो ऐसे में you will succeed, क्योंकि आप एग्जामिनर को ये दिखा देते हैं कि यू हैव एन आई फॉर डिटेल. अब कोई और व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि वो उस फैक्ट्स में देखे बहुत इश्यूज ऑफ फैक्ट अराइज हो रहे हैं, तो वो इश्यूज ऑफ फैक्ट पे एविडेंस अप्रिशिएट करने लगे एंड देन ही इज गिविंग हिज डिसीजन ऑन एवरी पॉइंट. और फिर वो एंड में आया इश्यूज ऑफ लॉ पे एंड ही फाइंड्स आउट that he does not, as a judge, has a jurisdiction to entertain that subject matter or that the suit is barred by some law. ठीक है. तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि डू यू हैव एन आई फॉर डिटेल और नॉट. तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा कि कहीं बार टू द सूट का इशू तो नहीं अराइज हो रहा, या जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट तो नहीं चैलेंज हो रहा. ठीक है. यू हैव टू सी दैट. और यहाँ पे जो jurisdiction लिया गया है जो टर्म, वो काफ़ी वाइड टर्म, वो वाइड सेंस में यूज़ हुआ है यहाँ पे. इसमें टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और आपका सब्जेक्ट मैटर तीनों आता है. ठीक है. अब एज फार एज टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी jurisdiction इज कंसर्न, अगर मान लीजिए पार्टी ने वो इशू रेज ही नहीं किया, ठीक है, तो इट वुड बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड. बट सब्जेक्ट मैटर तो आप वेव कर ही नहीं सकते. इफ द कोर्ट डज नॉट हैव अ jurisdiction in context of subject matter to decide a particular issue, then it is its finding on that issue is a nullity, absolute nullity. So I hope you understand till now. अब मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूँ इस पॉइंट पे. जजमेंट आपको कोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये जजमेंट है एस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर एफ.जे. ढिल्लन का. सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली इंटरप्रेटेड ऑर्डर 14 रूल 2 ऑफ CPC and said that under order 14 rule 2 of CPC, where issues of both law and of fact arise in the same suit, and the court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of on the issues of law only, it shall try those issues first, and for that purpose may if it thinks fit postpone the settlement of issues of fact after the issues of law have been determined. The jurisdiction of the court to try the issues of law apart from the issues of fact may be exercised only where in the opinion of the court the whole suit may be disposed of on the issues of law alone. But CPC confers no jurisdiction upon the court to try a suit on mixed issues of law and fact as preliminary issues. ये सिर्फ issues of law के लिए है, ये ध्यान रखिएगा. Mixed issues of law and fact या mixed issue या issues of fact के लिए नहीं है. It is only there for the issues of law, not for the mixed issue of fact and law or issues of fact. So Supreme Court is saying, but CPC confers no jurisdiction upon the court to try a suit on mixed issues of law and fact as preliminary issues. Normally the issues in a suit should be tried by the court, and all the issues that has been framed by the court should be decided, especially when the decision on issues even of law depends upon the decision of issues of fact. Decision on issues of fact. The Parliament, after referring to the decision of S.S. Khanna versus Brigadier F.J. Dhillon, the Parliament actually amended Order 14, Rule 2 in 1976 Amendment Act,
and actually incorporated the essence of this observation in the rule itself कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है. तो आपको जब भी आंसर लिखना हो आप बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट ने जो अमेंड किया है इट इज़ इन पर्सुएंस टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ एस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर एफ जे ढिल्लन. So let me just sum up the legal position that appears in this rule. Only an issue of law can be decided as a preliminary issue only where it is such that its decision does not necessitate investigation into facts and it relates either to jurisdiction of the court or to the suit being barred under any prevailing law, and that in the opinion of the court, the decision of the issue will result in decision of the whole or part of the suit. The discretion in this regard must always be exercised on the basis of sound judicial principles. However, it should be made clear that even if an issue of law can be decided as a preliminary issue, the court is not always bound to decide it as a preliminary issue, and it can use its discretion and postpone its decision also along with the other issues whether of law or fact. The whole purpose behind the amendment provision is to restrict the piecemeal decision and unnecessary multi-tier appeals at intermediate stages on preliminary issues alone and thus avoid procrastination of litigation. The new provisions that has been incorporated after 1976 Amendment Act justly aims at abridging the proceeding in the suit rather than permitting the prolongation of trial. Now let us refer to Rule 3, materials from which issues may be framed. The court may frame the issues from all or any of the following materials. A. Allegations made on oath by parties or by person present on their behalf or made by pleaders of such parties. Allegations made in pleadings or in answer to interrogatories delivered in the suit. C. Contents of the document produced by either party. तो इन मटेरियल से आप इशू बना सकते हैं. Rule 4 reads, Court may examine witnesses or documents before framing issues. Where the court is of the opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit, may adjourn the framing of issues to a day not later than 7 days and may, subject to the law for the time being in force, compel the attendance of any person or production of any document by person in whose possession or power it is by summons or other process. तो मतलब रूल 4 आपको कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इश्यूज करेक्टली फ्रेम नहीं हो सकते विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ सम पर्सन और डॉक्यूमेंट, देन इट मे कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ सम of that person or such document through summons or other processes, or for that purpose may adjourn the framing of issues to a day not later than 7. इसमें 7 days का पीरियड मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है. सेक्शन को एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इस प्रोविजन को भी एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने अभी आपके सामने रिफ्रेम कर दिया था इसे. तो आप याद रखिए कि आपको एसेंस समझना है, एसेंस समझने पे ध्यान देना होता है. रूल 5 देखिए, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज. कोर्ट में at any time before passing a decree amend the issues or frame additional issues on such terms as it thinks fit, and all the amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties. Mark these words, the matter in controversy. ये CPC में आप अक्सर occur होते हुए देखते हैं, क्योंकि whole purpose is to find the real matters of controversy between the parties and then give a decision on that point. ठीक है, रियल कंट्रोवर्सी पता चलेगी तभी तो कोर्ट एक अच्छा डिसीजन दे पाएगा, और अच्छा डिसीजन होगा तभी तो जस्टिस होगा. दैट इज व्हाई द कोर्ट इज एम्फसाइजिंग द कोड, आई एम सेइंग कोड, CPC. द कोर्ट इज एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन दैट द कोर्ट शुड strive to find out the matters in controversy between the parties. देखिए यही टर्म तभी यहाँ पे भी यूज हुआ है. खैर, let us read further. As may be necessary for determining the matters in controversy between the parties and shall be so made or framed. तो मतलब कोर्ट चाहे तो issues amend कर सकता है, frame additional issues कर सकता है, और जितने भी amendments या additional issues होंगे
वो वही issues frame होंगे या amend होंगे which are necessary for determining the real matters in controversy between the parties. Sub rule 2 reads that the court may also at any time before passing a decree pass करने से पहले, before word बहुत important है, so mark the word before passing a decree pass करने से पहले, उसके बाद नहीं कर सकता. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इश्यूज की जो पावर है उसकी अपर लिमिट जो दी गई है, जिस स्टेज तक आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री पास करने से पहले तक यू कैन स्ट्राइक आउट एनी इशू दैट अपीयर्स टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड और इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, किसके ओपिनियन में? कोर्ट के ओपिनियन में. तो इस स्टेज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिफोर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, आफ्टर नहीं हो सकता ये. ठीक है, अब रूल 6 पे आ जाते हैं. अब आपने ऑर्डर 14 का जो टाइटल है वो पढ़ा ही होगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन द इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज अग्रीड अपॉन. तो ये जो इश्यूज अग्रीड अपॉन है ये क्या है? ये रूल 6 और 7 इन पॉइंट से डील करता है. रूल 6 रीड्स question of fact or law may be by agreement to be stated in form of issues where a party to the suit are agreed as to question of fact or of law to be decided between them. They may state the same in form of an issue and enter into an agreement in writing that upon finding of the court in an affirmative or negative of such issue, a sum of money specified in the agreement or ascertained by the court, मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ, इट शैल बी डिलीवर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर, और या वन ऑफ देम बी डिक्लेयर्ड एंटाइटल्ड टू सम राइट एंड द अदर पार्टी वुड बी डिक्लेयर्ड एंटाइटल्ड टू सम लायबिलिटी एज इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट. Similarly, clause B is about that some property specified in the agreement and which is in dispute shall be delivered by one party to the other or to such person as the court may direct. Clause C deals with a situation that on finding on that issue by the court, either in affirmative or negative, one or more of the parties shall either do some act or abstain from doing a particular act which is specified in the agreement and which relates to the matter in dispute. ठीक है, ये 3 सिचुएशन है. इसको ऑर्डर 36 के साथ भी आप रीड कर सकते हैं, वो भी एक छोटा सा ऑर्डर है. इट टॉक्स अबाउट स्पेशल केस. अगर आप चाहें तो उसे पढ़ लीजिएगा, रूल 1 से लेके रूल 6 तक. उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट यू कैन कपल दिस प्रोविजन विद ऑर्डर 36 क्योंकि काफ़ी सिमिलर है. ठीक है, हालांकि ये इशू से डील करता है और वो स्पेशल केस से डील करता है, लेकिन जब आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि काफ़ी सिमिलर हैं दोनों. बस ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 14 का रूल 6 डील्स विद इशूज़, ऑर्डर 36 डील्स विद व्हाट? स्पेशल केसेस. वहाँ पे स्पेशल केस सबमिट किया जाता है एज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग. वो एग्रीमेंट फाइल होता है कोर्ट में एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सूट. वहाँ पे भी एग्रीमेंट में भी पार्टीज यही कहती हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन डिसीजन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ एंड दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग स्टेटिंग सच क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ अ केस फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. And upon the finding of the court with respect to such questions, वही same चीज़ है, sum of money fixed by the parties or as determined by the court will be paid by one party to the other of them. Other property movable or immovable will be delivered by one party to the other of them or to any other party as the court may direct, or one party shall do or abstain from doing a particular act. ठीक है, वही similar है काफ़ी कुछ, पर वहाँ पे केस फाइल हो रहा है इस तरीके से, है ना, पूरा का पूरा केस ही फाइल हो रहा है इस तरीके से. यहाँ पे सिर्फ इशू डिसाइड हो रहा है. ऑर्डर 14 के रूल 6 में इशू डिसाइड हो रहा है. सो ऑलवेज कपल दिस विद ऑर्डर 36. ठीक है, तो आप ऐसे एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ भी आपको समझ में आने लगती है कि ओके इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस बट ऑन अ ग्रैंडर स्केल. देन वी रीड रूल 7. कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट द एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट. Where the court is satisfied after making such inquiry as it deems proper that the agreement was duly executed, they have a substantial interest in the decision of such question as aforesaid, and the same is fit to be tried and decided. तो keywords क्या हैं?
क्लॉज ए बी सी में, क्लॉज ए में कीवर्ड है ड्यूली एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट शुड बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड। क्लॉज बी में कीवर्ड है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, और क्लॉज सी में कीवर्ड है फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड, ये कीवर्ड्स हैं। Then it shall proceed to record and try the issue and state its finding or decision thereon in the same manner as if the issue has been framed by the court, and shall upon the finding or decision on such issue pronounce a judgment according to the terms of the agreement, and upon the judgment so pronounced a decree shall follow। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब जरा मैं इश्यूज की इंपॉर्टेंस की थोड़ी बात करता हूं। देखिए इश्यूज को ना बैकबोन ऑफ द सूट भी कहा जाता है। एंड व्हाई आर द इश्यूज इंपॉर्टेंट? सी, फर्स्टली इट इज द इश्यूज फ्रेम्ड एंड नॉट द प्लीडिंग्स दैट गाइड द पार्टीज इन द मैटर ऑफ लीडिंग एविडेंस। जब इश्यू फ्रेम होता है तो वही गाइड करता है पार्टी को कि किस इश्यू पे क्या एविडेंस देना है। ठीक है, वो अलग बात है कि प्लीडिंग से ही इशू फ्रेम होते हैं, बट इश्यूज आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ द सूट। ठीक है, वो बैकबोन है सूट की। अगर कोई इशू फ्रेम नहीं होता है तो ऑब्वियसली द पार्टी कैन नॉट लीड एविडेंस ऑन दैट, है ना। तो इट इज द इश्यूज फ्रेम दैट गाइड द पार्टीज इन द मैटर ऑफ लीडिंग एविडेंस। सेकेंडली, कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू डिसाइड द पॉइंट on which an issue has been framed and the evidence led by parties, even if the point involved is not mentioned in the pleadings। अगर pleadings में कोई point mentioned नहीं है और कोर्ट ने फिर भी इशू बना लिया and parties actually lead evidence upon it, then the court cannot say that I will not give a decision on it। The court has to give decision on it unless and until it decides to exercise this power under Rule 5, that is striking out or amending that issue। Thirdly, कोर्ट शुड नॉट फ्रेम एन इशू विच डज नॉट अराइज इन द प्लीडिंग। ये भी प्रिंसिपल है कि कोर्ट को ऐसे इश्यूज नहीं फ्रेम करने चाहिए जो प्लीडिंग से नहीं अराइज कर रहे हैं। आपको पता है ना, इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर। फोर्थ इज इश्यूज मस्ट बी कन्फाइंड टू मटेरियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, दैट इज फैक्टा प्रोबेंडा, एंड नॉट on subordinate facts or evidence by which the material questions of fact and law are to be proved or disproved, that is facta probentia। आप हमेशा issues जो frame करते हैं वो material questions of fact and law पे base करते हैं, that is facta probenda या facta probandum, not on the basis of subordinate facts या evidentiary facts or the facts on the basis of which such material questions of fact and law are to be proved। आप evidentiary facts के basis पे issues नहीं बनाते। So the issues must be confined to material questions of fact or law and not on subordinate facts or evidence by which material questions of fact and law are to be proved or disproved। मतलब evidentiary facts के basis पे आप issues नहीं बनाते, आप issues बनाते हैं on the basis of material questions of fact and law। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब आपने एक इशू बना लिया तो एविडेंशियरी फैक्ट उस इशू को प्रूव करते हैं, आप एविडेंशियरी फैक्ट के बेसिस पे इशू नहीं बनाते। ठीक है, फैक्टा प्रोबेंडम will lead facta probentia, not the other way around। facta probentia doesn't lead the facta probenda। ठीक है, जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं या जो फैक्ट इन इशू होते हैं वो लीड करते हैं एविडेंशियरी फैक्ट्स को, एविडेंशियरी फैक्ट्स नहीं लीड करते हैं फैक्ट इन इश्यूज या मटेरियल फैक्ट्स को। ठीक है, फिफ्थ इज वन इशू शुड कवर ओनली वन फैक्ट और लॉ इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल है। व्हाई डू आई से दैट दिस प्रिंसिपल इज देयर? क्योंकि जब आप रूल 1 का सब रूल 3 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? ईच मटेरियल प्रोपोजिशन अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर शैल फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट इशू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वन इशू शुड कवर ओनली वन फैक्ट और लॉ इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, एक ही इशू में आप कई इश्यूज ना मिला दीजिएगा। यू हैव टू फ्रेम one issue which covers only one fact or law in dispute between the party। क्योंकि आपको जितने अलग अलग मैटर्स ऑफ फैक्ट और लॉ पे जो पार्टीज का डिस्प्यूट है उस पे डिस्टिंक्ट इश्यूज बनाने। अब ऐसे नहीं कर सकते आप सारे जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पार्टीज वो आप एक ही इशू में हौच पौच करके मिला दें। और जो फाइनल प्रिंसिपल है वो ये है कि इफ द केस गोज इन अपील
it must be dealt with by an appellate court on the issues settled for trial. अब जो appellate court जो है ना, वो अपील डिसाइड करता है उसी बेसिस पे कि इश्यूज हैज बीन करेक्टली डिसाइडेड और नॉट, है ना. वैसे तो थोड़े और नुआंसेस हैं, वो खैर अपील पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली. लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स तो यही है कि जब अपीलेट कोर्ट पे के पास मैटर जाता है तो अपीलेट कोर्ट जब केस को देखते हैं तो वो देखते हैं कि ओके ये इश्यूज हैं, तो इसी इश्यूज के इर्द गिर्द वो घूमता है. ठीक है, वो देखता है कि वेदर द एविडेंस हैज बीन प्रॉपर्ली अप्रिशिएटेड ऑन दैट इशू और नॉट, और वेदर दैट इशू हैज बीन करेक्टली डिसाइडेड और नॉट, ये सारी चीज़ें देखता है. तो इश्यूज जो ट्रायल कोर्ट में डिसाइड हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि in one sense they even confine the appellate courts generally on the matters which the appellate court has to look into and it cannot go beyond that. ठीक है, अब खैर ये तो जनरल प्रिंसिपल है. ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल्स थे. अब देखिए मैंने अपील के कंटेक्स्ट में ये तो बोल दिया आपको कि जनरली appellate court नहीं करता, लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि appellate court cannot frame an issue and refer them for trial. It can obviously do that. That power is with the appellate court. ये power है उसके पास. In fact, if you look at section 107 of CPC, वो खुद ही बताता है कि subject to such conditions and limitations as may be prescribed, मतलब कुछ conditions और limitations तो हैं appellate court पे obviously. Appellate court shall have the power to determine a case finally, remand a case, frame issues and refer them for trial or take additional evidence or require such evidence to be taken. अब उसमें कुछ nuances हैं जो वहाँ पे जब अपील पे आऊँगा तब मैं उनको बताऊँगा. लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रूल मैंने आपको बताया है, और अभी मैं आपको एक्सेप्शन भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ये ना मान लें कि जनरल रूल एब्सोल्यूट रूल है कि अपीलेट कोर्ट इश्यूज फ्रेम कर ही नहीं सकता. जनरली नहीं करता है, जनरली नहीं करता है. लेकिन अगर जस्टिस ऑफ द केस सो डिमांड्स तो वो चाहे तो इश्यूज भी फ्रेम कर सकता है, रेफर देम फॉर ट्रायल. एक शॉर्ट सा पॉइंट था, मैं यहीं पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. तो अपना जो माइंड है ना इन सारी सिचुएशंस के लिए थोड़ा ओपन रखिएगा, क्योंकि प्रोसीजरल लॉज आर ऑल अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स एंड एक्सेप्शंस. ठीक है, वो ऐसे ही चलते रहते हैं. तो जो भी बातें बोली जा रही होती हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है. ठीक है, उस हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है. तो मैं फिर रिटरेट कर देता हूँ कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं विद रिगार्ड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज. फर्स्टली that it is the issues framed that guide the parties in the matter of leading evidence. Secondly, the court cannot refuse to decide the point on which the issues has been framed and the evidence has been led by the parties, even though the point involved is not mentioned in the pleadings. The third principle is that court should not frame an issue which does not arise in the pleadings. Ordinarily, the court should not frame an issue which does not arise in the pleadings. Fourthly, issues must be confined to material questions of fact and law, that is facta probanda, and not on subordinate facts or evidence by which the material questions of fact and law are to be proved or disproved. ठीक है, तो subordinate facts क्या हुए? Facta probantia. Fifthly, one issue should cover only one fact or law in dispute between the parties. And finally, if the case goes in appeal, it must be dealt with by the appellate court on the issue settled for trial. ये ऑर्डिनरली जनरल प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, दीज आर व्हाट जनरल प्रिंसिपल्स. तो अपील के कंटेक्स्ट में मैंने इसीलिए बता दिया आपको अभी, क्योंकि जब अपील पढ़ाऊंगा तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि वहाँ पे इश्यूज कैसे फ्रेम हो रहे हैं. ध्यान रखिए जनरल प्रिंसिपल है, जब भी बोला जाता है जनरल प्रिंसिपल है इसका मतलब उसके एक्सेप्शन ज़रूर है. इन द वर्ड्स ऑफ गुजरात हाई कोर्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जयपाल जसवंत सिंह इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, गुजरात हाई कोर्ट सेड that framing of issues in the first instance would facilitate the applicant to lead necessary evidence in support of the claim and the relief paid pursuant thereto. In the second instance, it will avail the opponent an opportunity to confront and contradict the particular witness and thereafter to lead evidence if he so desires to bring home the defense pleaded, and in the third instance enlighten the trial court to test and appreciate the same in proper perspective and to enable it to reach a just decision. It is hardly required to be told that the issues are backbone of the suit,
They are also the lamppost which enlightens the parties to the proceeding, the trial court, and even the appellate court as to what is the controversy, what is the evidence, where lies the way to truth and justice. All that are guided by what? They are guided by issues. ठीक है, अक्सर ऐसा सवाल आ जाता है एकेडमिक स्टेट्स में अक्सर कि issues are called lamp post which enlightens the parties and the court. Why? तब आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है ना, कि भाई पार्टीज को कैसे एनलाइटन करता है, कि भाई पार्टीज को पता होता है ओके ये इशू है, अब इस पे क्या कहते हैं एक पॉइंट नैरो डाउन हो गया. अब प्लेंटिफ को पता है कि इस पॉइंट पे मुझे रिलीफ चाहिए, डिफेंडेंट को पता है मुझे इस इशू को डिफेंड करना है, ठीक है, मुझे पॉइंट प्रूव नहीं होने देना है. उसके बेसिस पे उन दोनों को ये पता होता है कि ओके इस पे एविडेंस क्या लीड करना है. ठीक है, और जो कोर्ट के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि जब वो इशू एक पर्टिकुलर डिसाइड हो जाता है तो उस पर जो एविडेंस आता है तो वो उस इशू की लाइट में उसे प्रॉपरली अप्रिशिएट कर सकता है और फिर ये डिसाइड कर सकता है कि जो इशू है वो प्रूव हो रहा है या नहीं. सो प्रॉपरली इट इज़ वेरी एप्टली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द सूट. ठीक है, बैकबोन ऑफ द सूट कहने का ही रीज़न ही यही है क्योंकि इसका जो गाइडेंस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ट्रायल कोर्ट की है. ठीक है, प्राइमरली इट इज़ द ट्रायल कोर्ट विच फ्रेम्स द इश्यूज. ठीक है, अब यू कैन ऑल्सो कीप इन माइंड कि जज मस्ट प्रॉपरली अप्लाई हिज माइंड एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द केस and then he should proceed to frame proper issues. And if the pleader is appearing for both the parties, then they should also assist the court in framing the issues. Always remember, if the proper issues are not framed, the parties may move the court to get the proper issues framed, and the issues must be very clear and specific. They should not be vague or evasive. They should be clear and they should be specific. ध्यान रखिएगा, issues must always be clear and specific. For that purpose, as you saw in Rule 3 of Order 14, that the court may even examine any documents or the pleader or the parties, and as you saw in Rule 4 that it may examine any witness and compel the production of such witness or may compel the production of such document as it requires for the purpose of framing the issues. तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि कोर्ट किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज, वो किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज. इट मे अमेंड द इश्यूज, इट मे इवन स्ट्राइक आउट द इश्यूज विच इन इट्स ओपिनियन हैज़ बीन रॉन्गली फ्रेम्ड. ठीक है, तो कैसे फ्रेम करेगा वो आपको रूल 3 मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से फ्रेम करेगा या कौन से विटनेस की हेल्प से फ्रेम कर सकता है या उनका असिस्टेंस ले सकता है, तो उसके लिए आपको रूल 3 और रूल 4 गाइड करता है. ठीक है, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रूल 3 में क्या क्या है और रूल 4 में क्या क्या है. वैसे ही पार्टीज क्या कर सकती हैं, दे कैन एग्री ऑन अ पर्टिकुलर इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ एंड दे कैन सबमिट दैट इशू टू द कोर्ट एज इन रूल 6. कोर्ट को सही लगता है कि the agreement has been duly executed, parties have a substantial interest in such question and the same is fit to be tried and decided, then it can decide such issue. After framing such issue, it can then decide such issue. And upon the finding and decision of such issue, the court can pronounce a judgment according to the terms of the agreement that has been submitted to the court. अभी specifically मैं rule 6 और 7 के context में बोल रहा हूँ. ठीक है, अब एक फाइनल पॉइंट से डील करता हूँ ऑर्डर 14 के कंटेक्स्ट में. क्या ओमिशन टू फ्रेम एन इशू इज अ मटेरियल इरेगुलरिटी विशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स इन द ट्रायल और इट इज अ क्योरेबल इरेगुलरिटी? द आंसर वुड बी दैट ordinarily, even though it is the duty of the court to frame proper issues, mere omission to frame an issue would not necessarily be fatal to the suit by itself. Now let us suppose if the court omitted to frame a material issue that is between the parties. ठीक है, एक material issue था जो कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया.
तो appellate या रिविजनल कोर्ट क्या कर सकता है? इट में रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट टू डिसाइड दैट इशू. ठीक है, तो वो फेटल इरेगुलरिटी नहीं है विच विशिएट्स द प्रोसीडिंग एंड द ट्रायल. ऐसा नहीं होता. अगर मान लीजिए कोर्ट कोई ऐसा इशू बनाने में ओमिट कर जाता है विच अफेक्ट्स द डिस्पोजल ऑफ द सूट ऑन मेरिट. कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जो कोर्ट को डिसाइड करना था पर उसने फ्रेम ही नहीं किया वो इशू. ठीक है, तो ऐसे केस में appellate या रिविजनल कोर्ट क्या कर सकता है? इट में रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट विद एन ऑर्डर दैट फ्रेम दैट पर्टिकुलर इशू एंड डिसाइड इट. है ना? लेकिन एक सिचुएशन आती है जहां पे दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स को पता है कि अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एन इशू. ठीक है, एंड बोथ पार्टीज लीड इन एविडेंस ऑन दैट पॉइंट इवन दो दैट इशू हैज नॉट बीन फ्रेम्ड. कोर्ट ने वो इशू फ्रेम नहीं किया है लेकिन दोनों पार्टीज को पता है कि उनके बीच वो पर्टिकुलर पॉइंट इशू में है और दोनों पार्टीज उस पॉइंट पे एविडेंस भी देती हैं और कोर्ट इस एविडेंस को अप्रिशिएट भी करता है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होगा कि सिंस द पार्टीज हैव नॉट बीन प्रेजुडिस्ड एंड सब्सटैंशियल जस्टिस हैज बीन डन, absence of an issue would not be fatal to the case so as to vitiate the proceeding. On what basis do I say that? I say on the basis of Nagubai Ammal versus B. Shamarao, decided by Supreme Court on 26th April 1956. There the Supreme Court said that the true scope of this rule is that evidence let in on issues on which the parties actually went for trial should not be made foundation for decision of another or different issue which was not present to the minds of the parties and on which they had no opportunity for adducing evidence. But the rule has no application to a case where the parties go to trial with the knowledge that a particular question is an issue, though no specific issues has been framed thereon, and adduce evidence relating thereto. मतलब कोर्ट कह रहा है कि अगर पार्टीज को पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट उन दोनों के बीच में इशू में है और वो उस पर एविडेंस भी लीड करते हैं तो जो जनरल रूल है ना वो तब अप्लाई नहीं करेगा. जनरल रूल इज दैट if the issue is not between the parties and the party had no opportunity of adducing evidence upon it, तो ऐसा इशू जो ना ही फ्रेम किया गया है और ना ही उस पर कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है टू अड्यूस एविडेंस, दैट शुडंट बी मेड फाउंडेशन ऑफ अ डिसीजन. उसको फाउंडेशन फॉर डिसीजन की तरह यूज नहीं करना चाहिए. बट ये जो जनरल प्रिंसिपल है, it would have no application to a case where the parties go to trial with full knowledge that a particular question is an issue even though no specific issue has been framed thereon and both parties adduce evidence relating to that particular issue. तब वो जनरल प्रिंसिपल आप पे नहीं अप्लाई करता क्योंकि आपकी नॉलेज में ही है कि वो इशू है और आपने उस पर एविडेंस भी एड्यूस किया है. सो दैट इज द सिचुएशन. तो याद रखिएगा कि अगर कोर्ट ऑर्डिनरली जनरली बता रहा हूं कि इफ द कोर्ट ओमिट्स टू फ्रेम अ मटेरियल इशू विच अफेक्ट्स द डिस्पोजल ऑफ द सूट्स ऑन मेरिट्स, तो रिजल्ट ये होगा कि appellate या रिविजनल कोर्ट विल रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट फॉर फ्रेश ट्रायल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, where the parties went to trial with full knowledge that a particular point is an issue and they have adduced evidence on it, then they could not be said to have been prejudiced and substantial justice would be said to have been done. ठीक है. देखिए ये दोनों सिचुएशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एन इशू एंड बोथ पार्टीज शुड लीड एविडेंस अपॉन इट. ठीक है. क्योंकि नागूबाई अम्मल का जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि रूल का एप्लीकेशन सिर्फ तभी नहीं होता है जब पार्टीज के पास नॉलेज है कि अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एन इशू इवन दो नो स्पेसिफिक इशू हैज बीन फ्रेम्ड और पार्टीज एविडेंस भी एड्यूस करती हैं उस पॉइंट पे. ठीक है. वरना कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि पार्टीज के पास नॉलेज है? कोर्ट को नहीं पता लगेगा. सो द एविडेंस मस्ट ऑल्सो बी एड्यूस्ड. कई बुक्स में ये वाली लाइन मिसिंग है, एविडेंस वाली. सो आई एम टेलिंग यू कि कंप्लीट लाइन ये है कि पार्टी शुड गो टू अ ट्रायल विद फुल नॉलेज दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एन इशू even though no specific issue has been framed and adduce evidence relating to that particular point. ठीक है. तभी एक्सेप्शन में आता है. तो ये तो हो गया. अब हम आते हैं ऑर्डर 15 पे. ऑर्डर 15 कहता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग.
parties not at issue, rule 1, where at the first hearing of the suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or fact, the court may at once pronounce judgment. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रूल प्रीलिम्स के पर्पस से. तो अगर पहली हियरिंग ऑफ द सूट पे पार्टीज के बीच में कोई इशू ही नहीं है, या मान लिया डिफेंडेंट सब एडमिट कर लेता है कि यस जो भी फैक्ट प्लेंटिफ कह रहा है वो एकदम सच है, सारे पॉइंट एडमिट कर लेता है, देन द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट. अब देख लीजिएगा, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट. ठीक है, सो इट इज डिस्क्रेशनरी और जुडिशियल डिस्क्रेशन जुडिशियसली ही एक्सरसाइज होगा. देन वी कम टू रूल 2, one of several defendants not at issue, where there are more defendants than one and any one of the defendants is not at issue with the plaintiff on any question of law or of fact, the court may at once pronounce judgment for or against such defendant and the suit shall proceed only against the other defendants. Whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up and in accordance with such judgment and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. तो बेसिकली आपसे रूल क्या कह रहा है, ये आपको ये समझा रहा है कि अगर सेवरल डिफेंडेंट्स हैं और एक डिफेंडेंट से कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, देन द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट आइदर फॉर और अगेंस्ट सच डिफेंडेंट. ठीक है, रूल 2 उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां पे देयर इज मोर देन वन डिफेंडेंट. देन वी कम टू रूल 3, parties at issue, where the parties are at issue on some question of law or of fact and the issues have been framed by the court as herein before provided. If the court is satisfied that no further argument or evidence then the parties can adduce is required upon such issues as may be sufficient for the decision of the suit, and that no injustice will result from the proceeding with the suit, forthwith the court may proceed to determine such issues, and if the finding thereon is sufficient for the decision, may pronounce a judgment accordingly, whether the summon has been issued for settlement of issues only or for final disposal of the suit. Provided that where the summons have been issued for settlement of issues only, the parties or their pleader present and none of them objects. मतलब कोई किसी भी पार्टी या प्लीडर को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए अगर issues have been अगर summons have been issued for settlement of issues only. ठीक है, रूल 2 सब रूल 2 कहता है कि where the finding is not sufficient for decision, the court shall postpone the further hearing of the suit and shall fix a day for the production of such further evidence or for further argument as the case may require. मैं बेसिकली बताता हूँ रूल 3 किस बारे में क्या बोल रहा है. ये रूल 3 उस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है कि कोर्ट ने इश्यूज ऑफ लॉ और फैक्ट फ्रेम कर लिए हैं और कोर्ट को लगता है कि जो पार्टीज हैं कोई इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकती या कोई फर्दर एविडेंस उस इशू पे लीड नहीं कर सकती. ठीक है, या कोर्ट के ओपिनियन में जो आर्ग्यूमेंट या जो एविडेंस जो अभी तक उसके पास है इट इज सफिशिएंट फॉर डिसीजन ऑन दैट इशू, और फिर कोर्ट को लगता है कि नो इनजस्टिस विल रिजल्ट कि अगर उसने इशू को उसी वक्त डिसाइड कर दिया, और अगर द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट ऑन दैट इशू इज सफिशिएंट for the decision of the suit, then court may also pronounce judgment. ठीक है, तो बेसिकली उसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि आर्ग्यूमेंट और एविडेंस उस इशू पे अब सफिशिएंट है और मैं चाहूँ तो वो इशू फोर्थवेट डिसाइड कर सकता हूँ, और अगर वो इशू फोर्थवेट डिसाइड कर रहा हूँ और वो सफिशिएंट है फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट, देन आई कैन ऑल्सो प्रोनाउंस जजमेंट अपॉन इट. ठीक है, तो ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है जो कोर्ट को अलाउ करता है ऐसा करने के लिए. अब इसका एक प्रोवाइजो है कि जहां पे समन्स सिर्फ इशू सेटलमेंट के लिए गए हैं तो वहां पे अगर आप ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं रूल 3 की, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टीज या उनके प्लीडर को ऑब्जेक्शन नहीं देना चाहिए. अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन दे दिया देन यू कैन नॉट एक्सरसाइज दैट पावर. ठीक है, अब सब रूल 2 कहता है कि वे द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन. अब ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि जब जो फाइंडिंग है ऑन दैट इशू इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन और फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो कोर्ट शैल पोस्टपोन द फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल फिक्स अ डे फॉर द
production of such further evidence or further argument as the case may require. तो रूल 1 में किस सिचुएशन के लिए था? जहां पे कोर्ट को लगता है कि नो फर्दर आर्ग्यूमेंट और एविडेंस कैन बी गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, या जो भी आर्ग्यूमेंट या एविडेंस जो अभी तक दिया गया है उस इशू पे, दैट इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ दैट इशू. ठीक है. सब रूल 2 सिचुएशन के लिए जहां पे फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन, तब कोर्ट शैल पोस्टपोन द फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड फिक्स अ डे for the production of such further evidence or further argument as the case may require. अब जो सब रूल 3 का रूल 3 का सब रूल 1 था, उसके अंदर कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट एज वेल इफ द डिसीजन ऑन दैट इश्यू इज सफिशिएंट फॉर दैट केस. ठीक है. बस एक ही प्रोवाइजो का ध्यान रखना है कि अगर समन्स दिए गए फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, then parties and their pleaders shouldn't have any objection. अगर उनको कोई objection है तो आप ये पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकते. ठीक है. तो दोनों सिचुएशन का सिनेरियो ध्यान में रखिएगा कि कब जजमेंट दिया जा सकता है और कब नहीं, क्योंकि जहां जहां भी कोर्ट को एम्पावर किया गया है जजमेंट देने के लिए, वहां वहां आपको बस पता होना चाहिए कि किन सिचुएशन में और किन पैरामीटर्स को फॉलो करके ही जजमेंट दिया जा सकता है. ठीक है. इसमें प्रोवाइजो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. ठीक है. क्योंकि अक्सर आ जाता है और अक्सर लोगों के दिमाग से निकल जाता है कि देयर इज़ अ प्रोवाइजर लाइक दैट. आपको पता है समन्स 2 तरीके के होते हैं. समन्स इज आइदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. तो अगर वो सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज के लिए ही है और तब आप रूल 3 के सब रूल 1 में अपनी पावर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, देन द पार्टीज और देयर प्लीडर्स शुडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन towards the exercise of such power. ठीक है. तो कीवर्ड्स क्या हैं इस रूल 3 में? आर्ग्यूमेंट, एविडेंस, ये कीवर्ड्स हैं. फिर प्रोवाइजो में आपका सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कीवर्ड्स हैं, और पार्टीज एंड प्लीडर शुडंट ऑब्जेक्ट, ये कीवर्ड है. ठीक है. ये आपके कीवर्ड्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा. अब रूल 4 आपसे कहता है कि where the summons has been issued for the final disposal of the suit and either party fails without sufficient cause to produce evidence on which he relies, the court may at once pronounce the judgment or may, if it thinks fit, after framing and recording the issues, adjourn the suit for the production of such evidence as may be necessary for its decision upon such issues. अब ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है? जब समन्स हैव बीन डिलीवर्ड फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, और तब पार्टी अगर फेल कर जाती है विदाउट सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस इट्स एविडेंस जिस पे वो रिलाई करती है, तब कोर्ट चाहे तो इट मे प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट सच पार्टी एट वंस, और इट मे डिसाइड टू adjourn the suit for the production of such evidence as the court may consider is necessary for the decision of the suit. तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है. चाहे तो इट में एट वंस प्रोनाउंस द जजमेंट, वो बोले कि इतना जितना भी एविडेंस अभी तक मेरे पास है दैट इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट, एंड इट में एट वंस प्रोसीड टू प्रोनाउंस जजमेंट. अब यहाँ पे वो वाला प्रोवाइजो नहीं है, वो वाला प्रोवाइजो काम नहीं करेगा जैसा कि रूल 3 में, क्योंकि रूल 3 में जो प्रोवाइजो था वो उसी सिचुएशन के लिए था कि जब समन्स जो गए हैं पार्टीज को, दे आर फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तो वहां पे पार्टीज और देयर प्लीडर्स कुड हैव ऑब्जेक्टेड इफ द कोर्ट sought to exercise its power under Rule 3, Sub-Rule 1. But Rule 4 recognizes no such proviso. क्योंकि यहाँ पे समन्स किसके लिए डिलीवर हुआ है? For the final disposal of the suit. यहाँ पे समन गया है final disposal of the suit के लिए. And if either party fails without sufficient cause की meaning अब तक समझ रहे होंगे. ये sufficient cause उसी context में है जैसा कि मैंने आपको रूल 13 ऑफ ऑर्डर 9 के कंटेक्स्ट में बताया है. ठीक है. इफ द पार्टी विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट. ठीक है. और इट में, इफ इट सो वांट्स, इट में इवन एडजर्न द सूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस, जैसा कि उसे सही लगता है. तो एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट का मतलब ये समझिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरली कि जो पार्टी फेल कर गई एविडेंस प्रोड्यूस करना उसी के खिलाफ जजमेंट जाएगा. ये जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी के खिलाफ जाए वो हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस. अब ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्ड पे जितना भी एविडेंस है इट इज सफिशिएंट
for the purpose of giving decision on a particular point or disposing of the suit in the favor of that particular party, तो वो भी कोर्ट ऐसा ही कर सकता है. लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जो पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहती है वो इसीलिए एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि जो जजमेंट है मोस्टली उसके खिलाफ ही जाने वाला है. दैट इज वाई इट इज सीकिंग टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना. तभी तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एविडेंस लीड करना चाह रही है. अगर उसके ओपिनियन में वो सफिशिएंट होता तो व्हाई वुड इट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एविडेंस व्हेन इट्स नॉट नीडेड. वो तभी प्रोड्यूस किया जा रहा होता है एक्स्ट्रा एविडेंस बिकॉज ये माना जा रहा है कि उस इशू पे जितना भी एविडेंस अभी तक उसने सप्लाई किया है दैट इज नॉट इनफ. ठीक है, तो रूल 4 आप समझ गए. ऑर्डर 15 आपका कंप्लीट हो गया. अब जरा कुछ सिचुएशंस में समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि ऑर्डर 15 में व्हेन कैन कोर्ट एट वंस प्रोनाउंस अ जजमेंट. तो देखिए फॉलोइंग केसेस हैं. पहला, where the parties are not at issue on any question of law or fact. Secondly, where there are 2 or more defendants and any one of them admits the claim of the plaintiff, the court may pronounce the judgment against such defendant and the suit will then proceed against other defendants who have not admitted the claim of the plaintiff. Third is where the summons has been issued for final disposal of the suit and either party fails without sufficient cause to produce evidence on which he relies. Fourth is where the party or its pleaders make certain admissions of facts which are sufficient to dispose of the case. And fifth is where, after issues have been framed, the court is satisfied that no further argument or evidence is required, subject to the proviso that has been given in Rule 3. ठीक है. So that is it for Order 15. अब एक चीज़ याद रखिए कि जितना भी आज का लेक्चर था ये प्राइमरली बेयर एक्ट लेवल का था. ठीक है, क्योंकि सीपीसी में बेयर एक्ट लेवल के कई ऐसी चीज़ें जिसको लेके सिर्फ एक बेसिक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है. उस पर कंसेप्चुअल एलैबोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. कंसेप्चुअल एलैबोरेशन छोटे छोटे होते हैं इन सारे पॉइंट्स में, और वो जहाँ के कहीं भी होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. अभी आपने देखा होगा कि जितना भी डिस्कशन अभी तक हुआ है वो प्राइमरली बेयर एक्ट के अंदर के ही प्रिंसिपल्स का हुआ है ना. चाहे वो ऑर्डर 14 की बात हो या ऑर्डर 15 की बात हो. तो याद रखिएगा कि ऑर्डर 14 और 15 के कंटेक्स्ट में कोई ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है. ठीक है, वो फेयरली सिंपल है. बेयर एक्ट की प्रॉपर अवेयरनेस अगर होगी देन यू कैन ऑलवेज राइट एन आंसर ऑन दैट. किसी भी चीज़ पे कोई भी कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए. आप बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट रेफर करिए, और इफ़ देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन दैट यू कैन आस्क मी. हाँ, एक ही कंसेप्चुअल पॉइंट उस पर है कि जो मैंने आपको नागू भाई अम्मल वाला पॉइंट बताया कि जो जनरल रूल से हट के जाता है, एक्सेप्शन में जाता है, कि अगर इशू नहीं फ्रेम हुआ है और दोनों पार्टीज़ को पता है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इशू बिटवीन देम एंड दे हैव एड्यूस्ड एविडेंस अपॉन इट, तो क्या तब नॉन फ्रेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू कैन बी सेड टू बी अ फेटल इरेगुलरिटी. वो मैंने आपको बता ही दिया. उस पे चलते चलते एक और केस बता देता हूँ जस्ट इन केस यू वांट वन मोर अथॉरिटी ऑन द सेम पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट रिटरेट किया था नेदुनूरी कामेश्वरम्मा वर्सेस संबापति सुब्बा राव. 17 अप्रैल 1962 को डिसाइड हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट सेड इन दैट केस दैट नो डाउट नो इशू वाज फ्रेम्ड एंड द वन विच वाज फ्रेम्ड could have been more elaborate. मतलब जो एक इशू फ्रेम हुआ था वो elaborate नहीं था, वो बड़ा वेग सा था. But the Supreme Court then further said that since the parties went to trial fully knowing the rival case and led all the evidence not only in the support of their contentions but also in refutation of those of the other side, then it cannot be said that the absence of the issue was fatal to the case or there was a mistrial which vitiates the proceeding. We are therefore of opinion that the suit could not have been dismissed on this narrow ground, and also there is no need to remit as the evidence which has been led in the case is sufficient to reach the right conclusion. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इशू तो फ्रेम नहीं हुआ था, ये बात ठीक है, लेकिन दोनों साइड को पता था कि what is the particular issue between them, even though the court never framed an issue on that point. और दोनों पार्टी ने एविडेंस भी लीड किया उस पॉइंट पे. तो कोर्ट ने बोला कि नॉन फ्रेमिंग ऑफ दैट इशू इज नॉट फेटल टू द केस
neither there has been any mistrial nor there is a need to remand the case back to the trial court, because the evidence which has been led in the case is sufficient to reach the right conclusion. So you can see that the position of law is fairly settled with regard to that particular exception. ध्यान रखिएगा वो particular exception के दो conditions होते हैं जो satisfy होना चाहिए. जो पहला condition है वो ये है कि parties should have knowledge that a particular question is an issue even though no specific issue has been framed on that point, and then they should adduce evidence on that issue. उनको evidence भी उस point पे उस point पे adduce करना है. It is very essential. किस point पे? उस point पे जिस पे कोर्ट ने issue frame नहीं किया है. ठीक है, तो that was the exceptional scenario. वो बस मुझे बताना था कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आगे चल के टफ होने शुरू हो जाए या आप ऑलरेडी ऑप्ट कर रहे हैं डीजीएस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, देन यू आर अवेयर अबाउट ऑल दीज सिचुएशंस, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है दैट यू हैव बेसिक अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. और बाकी आपको जनरल रूल तो इश्यूज़ को लेके पता ही हैं कि जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए थे उसको ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि वाई द इश्यूज़ आर सो इम्पॉर्टेंट और वाई द इश्यूज़ आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ द सूट, तो उसको प्रॉपरली आप आंसर करिएगा. ठीक है, क्योंकि इश्यूज़ ही डिटरमाइन करते हैं. दे आर कॉल्ड द लैम्प पोस्ट विच गाइड्स द पार्टीज एंड द कोर्ट्स. ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर 14 और 15 पे सिर्फ बेयर एक्ट और जितना भी मैंने आपको कुछ केस लॉ स्टडी नोट्स में जो दिए हैं वो सिर्फ आप क्या कहते हैं वन टाइम रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ करिएगा. ठीक है, those case laws I have given just to give you an idea how the things are working. वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू कीप देम इन द बैक ऑफ योर माइंड. ठीक है, एग्जाम में आई डोंट थिंक यू नीड टू रिप्रोड्यूस दोज केस लॉज, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये बस आपको समझाने के लिए हैं पॉइंट्स को. ठीक है, ये वाला भी पॉइंट जो मैंने एक्सेप्शनल बताया है ये भी अगर नहीं पूछा जाता है देन यू डोंट नीड टू मेंशन. लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपने जनरल रूल एक्सप्लेन कर दिया, तब आप एक्सेप्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इश्यूज़ को लेके. और याद रखिएगा जब भी आप लिखें तो जनरल रूल पहले मेंशन किया जाता है, कभी भी एक्सेप्शन से मत शुरुआत करिएगा. ठीक है, यू ऑलवेज मेंशन जनरल रूल फर्स्ट एंड यू फॉलो इट अप विद एन एक्सेप्शन, क्योंकि अगर जनरल रूल है तो कोई एक्सेप्शन भी होगा, वरना उसे जनरल रूल ना कहा जाता, उसे एब्सोल्यूट रूल कहा जाता. ठीक है, सो अब आपका ऑर्डर 10, 14, 15 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है. आपको बेयर एक्ट में इसमें जितना समझना है और लेक्चर में मैंने जितना बताया है उतना ही समझना है. ठीक है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है. अब मैं आपसे लेक्चर के एंड में एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि इश्यूज़ किन किन मटेरियल से फ्रेम किए जा सकते हैं और किस सिचुएशन में पार्टीज कैन अग्री अपॉन एन इशू. ठीक है, इस पे ज़रा आप मुझे जवाब दीजिएगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. I hope that you are able to answer these two particular questions. They are fairly easy. So that is it for today. I would be seeing you tomorrow.